Welcome students. In our previous video, we had discussed about the syllabus and prescribed books and our marking scheme as well. Now in this video, we will read our chapter 1 from the book Behind. Chapter's name is The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov is an American writer and a professor who was known for his work about science fiction and popular science. He wants to tell us about the schools of future. How will they develop? There will be virtual classrooms, there will be moving e-text, there will be robotic teachers, there will be learning through computers. It's a very light story. It is set in future. It's a story about a girl or boy, a girl Margie who is 11 years old and a boy Tommy who is 13 years old. The story begins with Margie when she was writing in her diary about a real book which Tommy had found. That book was about the schools which perhaps existed in centuries ago. Now we will start our chapter. Please take out page number 5. Chapter 1. The story we shall read is set in the future when books and schools as we know now them will perhaps not exist. How will children then study? The diagram below may give you some ideas. स्कूल्स ऑफ फ्यूचर आप डायग्राम देख सकते हैं. जैसे स्कूल ऑफ फ्यूचर में क्या बता रहे हैं कि वो वर्चुअल क्लासरूम्स हो सकते हैं, मूविंग टेक्स्ट हो सकता है, रोबोटिक टीचर्स हो सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड सारा मटेरियल हो सकता है. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट अ स्टोरी. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." Please underline that date, 17 May 2157. 2157 लगभग 37-38 years आगे है हमसे, यानी 140 years आगे की स्टोरी है कि फ्यूचर में वो बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं. तो मार्जी अपनी डायरी में ये डेट को लिख रही है 17 मई 2157 को कि आज टॉमी को एक बुक मिली, एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfathers once said that when he was a little boy, his grandfather, please turn over the page, told him that there was a time when all stories were printed on paper. फिर जब वो ये बुक अपनी डायरी में लिख रही होती है इस बुक के बारे में, तो उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो एक बार अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे थे that he went to a real school, actual school, where students were taught by a human teacher. वो एक रियल स्कूल में जाते थे जहां बच्चों को एक ह्यूमन टीचर पढ़ाया करते थे, और वह तब बुक्स कैसी हुआ करती थी, प्रिंटेड पेपर पे हुआ करती थी. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Now look at the word crinkly. Underline it. Crinkly. Crinkly means with many folds and lines. क्योंकि जब बहुत पुराना पेपर हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, उसमें रिंकल्स हो जाते हैं, वो लाइंस हो जाती हैं, पेल पड़ जाता है. तो बुक भी काफी पुरानी थी, सेंचुरीज पुरानी होगी, तो वो बुक भी कैसी हो चुकी थी, पेल हो चुकी थी, डल हो चुकी थी. उसके पेजेस भी फोल्ड हो रहे थे, उसमें लाइंस रिंकल्स पड़ रहे थे. ठीक है. और सबसे अजीब बात उनको जो लग रही थी वो क्या लग रही थी कि उस बुक में जो लेटर्स थे वो कैसे थे, बिल्कुल स्टिल थे, वो मूव नहीं कर रहे थे. और वो जब भी पेज को टर्न कर रहे थे तो वो वहीं पे उनको वैसे ही दिखते थे. उनको ऐसा अजीब क्यों लग रहा था, उन्हें उसमें इतना वंडर क्यों हो रहा था, क्योंकि वो अब कहाँ पढ़ रहे थे, 2157 में वो कहाँ पढ़ रहे थे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां लेटर्स क्या करते रहते, मूव करते रहते हैं. आगे की स्क्रीन बढ़ती जाती है, वो आगे बढ़ते जाते हैं, और जब भी वो पीछे आएंगे तो वो हमेशा उनको चेंज मिलेगा. लेकिन ऐसे प्रिंटेड बुक में उनको चेंज नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए बहुत वंडर की बात थी. Gee, said Tommy, what a waste.
When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. जब वो उस बुक को देख रहे होते हैं, उसके पेल डल येलो पेजेस को वो टर्न ओवर कर रहे होते हैं, उसकी क्रिंकली पेजेस को, तो टॉमी मार्जी से कहता है, जी व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है। अब आप देखिए कि हम जब इस बुक को पढ़ लेंगे सारा कंप्लीटली, तो ये बुक हमारे किस काम की है। हमने इसको पूरा पढ़ लिया, तो ये एकदम स्टिल लेटर्स हमारे किस काम के हैं, हम तो इसको फेंक देंगे। इसकी बजाय हमारी टेलीविजन स्क्रीन जो है वो ज्यादा अच्छी है, उस पर नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, नए नए स्टोरीज आती रहती हैं, तो मुझे तो वो ही ज्यादा अच्छा लगता है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्जी ने कहा, हाँ सेम एज विद मी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। ये प्रिंटेड स्टिल लेटर्स वाली बुक तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। मार्जी जो थी वो 11 ईयर्स ओल्ड थी, टॉमी जो थे वो 13 ईयर्स ओल्ड थे, तो टॉमी ने मार्जी से ज्यादा बुक्स पढ़ी होंगी। मार्जी ने इतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी। टेली बुक्स मीन्स जो कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक्स हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो स्टफ है वो। She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?" "School." फिर मार्जी पूछती है, "Where did you find it?" ये तुम्हें कहाँ मिली, बुक तुम्हें कहाँ मिली। तो टॉमी बुक पढ़ने में ही बिजी हो रहा होता है, वो पेजेस टर्न ओवर कर रहा होता है, तो बिना मार्जी की तरफ देखे हुए अपने घर की तरफ इशारा करके कह देता है, "इन द एटिक." एटिक मीन्स एक स्टोर रूम जैसा हिस्सा होता है जो स्टेयरकेस के नीचे बना होता है। जैसे कई मूवीज में अगर आपने देखा होगा कि सीढ़ियां बनी होती हैं और सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा रूम बना होता है, जैसे हम स्टोर रूम की तरह काम में ले लेते हैं। जैसा हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा कि हैरी पॉटर के रूम जो होता है वो स्टेयरकेस के नीचे वो स्टोर रूम ही होता है, तो उसको कहते हैं एटिक। What's it about? ये किस बारे में है? It's about schools. Margie was scornful. Scornful means showing disinterest. उसको scornful contemptuous. उसको लगता है कि स्कूल के बारे में कौन बुक लिखता है? What's there to be write about schools? I hate schools. स्कूल्स के बारे में कौन बुक लिखता है? मुझे तो स्कूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Margie always hated schools, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Margie always hated school, पर अब वो उसको बहुत ज्यादा हेट कर रही थी अपने स्कूल को। क्यों हेट कर रही थी? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो उसका कंप्यूटर था, वो उसको ज्योग्राफी सेक्शन में बार बार टेस्ट दिए जा रहा था और वो उन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इससे उसके ग्रेड्स गिरते जा रहे थे और उनकी मदर जो थी वो इससे काफी डिसअपॉइंटेड हो रही थी। तो इसलिए उनको बार बार वो मैकेनिकल टीचर से जाके पढ़ना, ज्योग्राफी के वो टेस्ट ही देते रहना और उनमें ग्रेड्स कम आना, उनकी मदर का दुखी होना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अब उनकी मदर परेशान हो गई कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, क्यों मार्जी की ग्रेड्स कम आ रही हैं। तो उन्होंने किसे बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? काउंटी इंस्पेक्टर इज अ पर्सन who fixes all the faults and all the mistakes of a computer or any machine. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. County inspector was a man who was round, little, थोड़ा मोटा सा, छोटा सा आदमी था, जिसका रेड फेस था
एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें बहुत सारे डायल्स, वायर्स वगैरह, क्योंकि वो मशीनरी सही करने आ रहा है तो उसके पास ये सब सामान ऑब्वियसली होगा, तो वो सब उसके पास था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी की तरफ स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया और उसका वो मैकेनिकल टीचर वो उठा के अपने साथ ले गया वहां पे और उसको फिक्स करने लगा। उसने उसको खोल के उसकी सारी प्रॉब्लम चेक करी, उसने उसको वापस देखा, चेक किया, सही किया, रिपेयर किया, उसको वापस से फिक्स किया। तो मार्जी इस सब के बीच में ये होप कर रही थी कि काश ये मैकेनिकल टीचर सही ना हो। अगर वो सही नहीं होगा तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसको ज्योग्राफी के टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, टेस्ट नहीं देगी तो ग्रेड्स भी नहीं कम आएंगे, उसकी मदर भी डिसअपॉइंट नहीं होगी। तो उसको लग रहा था कि भाई ये जो मैकेनिकल टीचर है ये कैसे भी करके सही ना हो। पर जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन, तो उसने 1 घंटे के अंदर ही उसकी सारे फॉल्ट्स जो थे, उसकी मिस्टेक्स जो थी वो सारी फिक्स कर दी और वो आगे बढ़े। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्जी को सबसे ज्यादा खराब क्या लगता था मैकेनिकल टीचर में, कि उनको अपना होमवर्क जो होता था वो एक परमानेंट स्लॉट में लिखना होता था। इसके लिए उनको अपने आंसर लिखने के लिए पंच कोड की जरूरत होती थी। पंच कोड मीन्स कंप्यूटिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में ही आंसर्स देगा, तो वो पंच कोड में उसको अपने आंसर्स लिखने होते थे। और वो ये चीज कब सीख चुकी थी, जब वो 6 साल की थी, वो तभी ये चीज सीख चुकी थी और वो अपने आंसर्स उनमें देती थी। जो मैकेनिकल टीचर था वो फटाफट उनके आंसर्स को चेक करके, उनके मार्क्स को कैलकुलेट करके रैंडमली ही उनको उनका रिजल्ट दे देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब इंस्पेक्टर ने देखा वो सब कुछ सही कर लिया काउंटी इंस्पेक्टर ने, फिर उसने स्माइल किया मार्जी की तरफ, उसका हेड पैटेड, पैटेड मीन्स थपथपाना हल्के से। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." Geared means adjusted to a particular standard or high level. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. अब काउंटी इंस्पेक्टर ने सब कुछ चेक कर लिया, उसने सब कुछ देख लिया, उसका काम खत्म हो गया। फिर उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, उन्होंने मार्जी की मदर से कहा, मिसेस जोन्स, इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है इस मैकेनिकल टीचर का, वो एक लेवल हाई गियर अप हो चुका है। ठीक है, मार्जी के लेवल से, उसके एवरेज, उसके मेंटल लेवल से हाई लेवल पे हो चुका है। इस वजह से मार्जी टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर पाती है। इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। मार्जी का जो मेंटल लेवल है, उसका जो रिजल्ट है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। और उसने फिर मार्जी का हेड जो था पैट किया। तो यानी गलती किसकी थी? मैकेनिकल टीचर। क्यों? क्योंकि मशीन है, मशीन में ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। मैकेनिकल है तो उसमें प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो वही प्रॉब्लम उनके साथ हुई। जो एक ज्योग्राफी सेक्टर का एक जो लेवल था वो अप हो गया, थोड़ा बढ़ गया, इस वजह से मार्जी के लेवल के बराबर नहीं रहा और वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। उसको तो लगा था कि उसका मैकेनिकल टीचर कभी सही नहीं होगा, अकाउंटिंग इंस्पेक्टर उनको अपने साथ ले जाएंगे रिपेयरिंग के लिए और शायद 1 महीने के लिए वो भी आराम कर लेगी, क्योंकि उसको याद आता है कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो भी ऐसे ही एक बार खराब हो चुके थे, तो उनको काउंटी इंस्पेक्टर ले गए थे अपने साथ कोई 1 महीने के लिए। क्यों, क्या प्रॉब्लम थी उनके साथ कि उनका जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट, ब्लैंक आउट मीन्स वाइप आउट, वहां से हट ही गया था, वैनिश हो गया था। तो उनको टेस्ट पेपर्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो वो सारे फॉल्ट्स और मिस्टेक्स को सेटअप करने के लिए, फिक्स करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर उनको अपने साथ ले गया था। लेकिन मार्जी के केस में ऐसा नहीं था। मार्जी के केस में उसके मैकेनिकल टीचर में इतनी बड़ी फॉल्ट नहीं थी, बस वो एक लेवल अप हो चुका था जो उन्होंने उसको उसके लेवल पे स्लो डाउन कर दिया था।
नीचे कर दिया था, मार्जी के लेवल पर ही। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें ये बताता है कि क्यों मार्जी स्कूल से हेट करती है, क्यों उसने टॉमी को ऐसा स्टेटमेंट दिया कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है। और अभी वो टॉमी से यही पूछ रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Loftily means in a superior way, जैसे वो सब कुछ जानता है। तो जब उसने मार्जी ने उनसे ये सवाल पूछा कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा, तो टॉमी ने बड़ा ही सुपीरियर आइज से उसको देखते हुए बोला, क्योंकि ये हमारे टाइप के स्कूल्स नहीं है, ये वो स्कूल्स हैं जो सेंचुरीज अगो होते थे। कोई 100 years अगो वो जो स्कूल्स हुआ करते थे ना, उन स्कूल के बारे में है, ये हमारे जैसे स्कूल्स के बारे में नहीं है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Margie was hurt. Margie को लगा कि मैं ये नहीं जानती कि किस तरीके के स्कूल्स पहले हुआ करते थे। सेंचुरीज अगो की बात हो रही है, 100 years अगो की बात हो रही है, तो मैं तो नहीं जानती उस टाइम कैसे स्कूल हुआ करते थे। तो उसने थोड़ा सा ऊपर होके देखना शुरू किया बुक के अंदर। Anyway, they had a teacher. Anyway, उनके पास एक टीचर हुआ करता था। Please turn over the page. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. हाँ, उनके पास भी टीचर हुआ करता था, but it wasn't a regular teacher. Now, please underline that word regular. Here, regular means normal. Normal teacher. हमारे जैसे टीचर जो ह्यूमन टीचर नहीं थे, तो वो रेगुलर टीचर होते थे। वाज अ मैन, क्या होते थे? आदमी होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, मैनी ही टीचर्स हुआ करते थे। वो क्या करते थे? बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स को बहुत सी चीजें एक्सप्लेन किया करते थे और उनको होमवर्क करके लाने को कहा करते थे। A man isn't smart enough. फिर मार्जी क्या सोचती है? मार्जी की नजरों में क्या है कि मैकेनिकल टीचर ज्यादा स्मार्ट होते हैं बजाय एक ह्यूमन टीचर के। तो मार्जी एक स्टेटमेंट देती है, A man isn't smart enough. वो इतने स्मार्ट तो नहीं होते कि वो बच्चों के सवालों के जवाब दे सके, उनको होमवर्क दे सके, उनका होमवर्क चेक कर सके। He knows, sure he is. My father knows as much as my teacher. तो इस बात पे टॉमी कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि मेरे फादर जो है वो इस मैकेनिकल टीचर से ज्यादा जानते हैं। तो वो अपने फादर का रेफरेंस लेके कहता है कि जैसे अगर मेरे फादर इस मैकेनिकल टीचर से ज्यादा जान सकते हैं, वैसे ही एक ह्यूमन टीचर भी एक मैकेनिकल टीचर से ज्यादा जान सकता है। He knows almost as much. I betcha. Betcha एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है I bet you, शर्त लगाता हूँ या इस बात की गारंटी देता हूँ कि ह्यूमन टीचर भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं। Margie was not prepared to dispute that. Dispute that means disagree with, किसी चीज से सहमत होना, disagree होना। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मार्जी इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी अग्री नहीं थी। तो उन्होंने कहा, मार्जी ने फिर उसको जब ये समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पर मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में आने की परमिशन नहीं दे सकती और उनसे नहीं पढ़ सकती किसी स्ट्रेंजर से। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. फिर जो टॉमी होता है मार्जी की इस बात पे काफी जोर से हंसता है और वो कहते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं जानती मार्जी, कि वो टीचर्स ह्यूमन टीचर्स घर नहीं आते, बल्कि सारे बच्चे एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां वो होते हैं। उस बिल्डिंग में वो सब वहां जाते हैं, टीचर भी उस बिल्डिंग में आते हैं और तब वो वहां पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं? श्योर, इफ दे वर द सेम एज।
हाँ, क्योंकि वो सेम एज के होते हैं। जैसे 6th स्टैंडर्ड है तो 6th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बच्चे होंगे, वो सब एक ही एज ग्रुप के होंगे, आसपास होंगे। 7th में उसी अकॉर्डिंग होंगे, 8th में उसी अकॉर्डिंग होंगे, तो वो सब उसी अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। Sure, if they were the same age, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मदर कहती है एक टीचर को एक बच्चे के, एक बॉय और एक गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए, एक माइंड के अकॉर्डिंग उनको वहां रीच होना चाहिए और उनके माइंड के अकॉर्डिंग ही उन्हें पढ़ाना चाहिए। हम हर बच्चे को एक ही चीज थोड़ी पढ़ा सकते हैं, हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है, तो हर बॉय, हर गर्ल, हर बच्चे के अकॉर्डिंग एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, उसके मेंटल लेवल को जज करके। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. हाँ, पर वो ह्यूमन टीचर तो ऐसा नहीं करते थे, और अगर अब तुमको किताब नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मैं तो इस बारे में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मार्जी उन स्कूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. उन्होंने आधी भी बुक फिनिश नहीं की होगी, तभी मार्जी की मदर उन्हें आवाज लगा देती है, मार्जी, it's time for school. Margie looked up, not yet, mama. मार्जी ऊपर देखी कहती, अभी नहीं जाना है स्कूल। Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. फिर मिसेस जोन्स कहती है, तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो चुका है और टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है। Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? क्या मैं इस किताब को इस स्कूल के बाद में पढ़ लूं? यानी स्कूल जाने के बाद में मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ इस किताब को? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arms. हाँ, क्यों नहीं, पढ़ सकती हो। Nonchalantly means carelessly, ऐसे ही जवाब देते हुए कि हाँ पढ़ सकती हो, और फिर वहां से विसल करते हुए चले गए, और वो जो डस्टी, पेल, येलो, डल बुक थी वो अपनी उसके आर्म में थी, अब उसको लेके वहां से चले गए। Margie went into the school room. अब देखिए कि उनका स्कूल रूम कैसा है, उनका स्कूल कैसा है। It was right next to her bedroom, and for mechanical teacher was on and waiting for her. मार्जी का स्कूल कहाँ था? Just next to her bedroom. उसके बेडरूम के बस पास वाला ही रूम उसका स्कूल रूम था। वहां एक मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था और उनका वेट कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. मार्जी वहां डेली पढ़ती थी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे को वो नहीं पढ़ती थी। मंडे टू फ्राइडे वो रेगुलर आवर्स में वहां अपनी स्टडी करती थी उस वर्चुअल रूम में, क्लासरूम में, क्योंकि उनकी मदर का कहना ये था कि जो भी रेगुलर आवर्स में पढ़ाई करता है वही प्रोग्रेस करता है। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन जो थी वो जली हुई थी मैकेनिकल टीचर की, और वो क्या कह रहे थे, इट्स टाइम फॉर अरिथमेटिक लेसन, अरिथमेटिक लेसन का टाइम है, और वो क्या पढ़ाने वाले थे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले मार्जी को अपना जो होमवर्क था वो उस प्रॉपर स्लॉट में डालना था, फिक्स करना था, यस्टरडेज होमवर्क। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. मार्जी ये काम कैसे करने लगी, एक साय के साथ करने लगी। She was thinking about the old school, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोचने लगी जब उनके ग्रैंडफादर जाया करते थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. All the kids from the whole neighborhood came there. वो पुराने स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, आस पड़ोस के सभी बच्चे, नेबरहुड के सभी बच्चे वहां आया करते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में खेल रहे हैं, साथ साथ बैठे हैं स्कूल रूम में, साथ साथ घर जा रहे हैं स्कूल के बाद में। और सबसे बड़ी चीज,
वो सब एक सेम ही चीज पढ़ रहे हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दे कैन हेल्प ईच अदर, दे कैन प्ले विद ईच अदर, बात कर सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। The writer wants us to realize the importance of school in our school. Through this paragraph, the writer wants to realize us the importance of our school. Children sometimes get bored, fed up with the school. पर अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो अपने फ्रेंड से कैसे मिलेंगे? आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? डल हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, जैसे मार्जी की हो गई थी कि बस उन्हें अपने बेडरूम से ही जस्ट निकल के पास वाले रूम में जाना है, वहां पे वो मैकेनिकल टीचर लेटअप रहेगा, वहां पे सब कुछ फ्लैश होता रहेगा, अपना यस्टरडे का होमवर्क उस प्रॉपर स्लॉट में डाल दो, वहां से वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, वो आप पढ़ लो, बस फिक्स टाइम में आप पढ़ लो। ना आपके पास कोई क्लासमेट है, ना आपसे कोई बात करने वाला है, ना आप किसी से भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ना किसी को बता सकते हो, ना किसी की हेल्प कर सकते हो, ना खेल सकते हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो स्कूल्स आज है उनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ऑल द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात क्या है? टीचर जो है वो पीपल है, ह्यूमन है, मैन है। The mechanical teacher was flashing on the screen when the end fraction 1.5 and 1/4. जब ये सब कुछ मार्जी सोच रही थी तो उस स्क्रीन पे बस जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैश कर रहा था when the end fractions 1.5 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो मार्जी बस उस बारे में वो फ्लैश कर रहा था, उसका जो इंस्ट्रक्शन था उसमें मैकेनिकल टीचर पे, बट मार्जी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, वो उन्हीं दिनों को याद कर रही थी जब बच्चे सब किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बात करके पढ़ रहे हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। ठीक है। द ऑथर एंड्स दिस स्टोरी विद द टाइटल ऑफ द चैप्टर, द फन दे हैड। The fun the students had when they went to real school. They were taught by the real teachers, human teachers. Margie is just thinking about the kids of the past who went to real school and enjoyed and playing with each other, talking with each other. ठीक है, तो वो उन फन की बात कर रही है। तो लास्ट में ऑथर ने जो लाइन है about the fun they had, वो चैप्टर के टाइटल से ही लिया है। ठीक है, चैप्टर का टाइटल ही है यहाँ कि वो किस फन की बात कर रहे हैं। वो फन जो पास्ट स्कूल में जाने वाले बच्चे एक दूसरे के साथ फील करते थे, एक दूसरे से बातें करना, खेलना, उस फन के बारे में बात कर रहे थे। नाउ वी हैड फिनिश्ड द चैप्टर, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो बी प्रिपेयर्ड एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।